Yes, sir. Thank you for that, sir. Sustainable agriculture is not only about the crops on land, but also about the treasures grown in the water like pearls and crabs. Jai Hind and good evening to everyone present here. A very warm welcome to Society for Agricultural Advancement, Research, Training and Human Innovation. Knowledge Revolution in Agriculture, Nurturing Technology and Innovation 2026. Our 30-day national training program. On behalf of Team Agri Sardi, it is my immense pleasure to welcome all the participants and our esteemed resource person for today. I am Chatrisha along with Rohit. We are from Agri Sadi team and will be coordinating and guiding you throughout this session today. It gives us a pleasure to introduce today's esteemed expert, Engineer Mayur Jagdale sir, a national level authority with an extensive practical knowledge in pearl production and crab farming. And at this point, I would also like to extend a very warm and respectful welcome to Ajay Kasana sir, the Chief Secretary of Agri Sardi and the Editor-in-Chief of Chorus Publication. He is the visionary behind Agri Sardi, a platform that is dedicated for transforming agricultural education through science-based, sustainable and practical learning, which is including the initiatives like this 30-day national training program. And before we move to ahead today's session, let us take a quick recap moment of yesterday's insightful discussion by Shubdeep Ghosh sir. The topic was on entrepreneurship opportunities of fish farming, where we have learned that the fish farming is also emerging as an important and most promising opportunity and in agricultural sector. It is not only providing farmers with an additional source of income, but also contributing to the food security and rural employment. Dr. Gosar has also highlighted how fish farming supports sustainable agriculture by efficiently utilizing water resources and integrating with other farming systems. These practices help farmers maximize their productivity while managing and maintaining the ecological balance. Overall, this session helped us in understanding that with the proper knowledge, technology, and market access, fish farming can become a powerful pathway for agripreneurship, livelihood generation, and sustainable agricultural development. And with this, we are extremely delighted to host today's session on highly innovative income generating topic that is none other than production and crab farming. This session holds an immense importance for those who are interested in aquaculture, diversification of farming, and high value agribusiness opportunities. So, to guide us on this topic, we have Mayur Shivaji Jagdale sir, a successful, innovative farmer entrepreneur from Shinghali district of Maharashtra. Jagdale sir is widely recognized for transforming traditional agriculture into a highly profitable and sustainable venture through black mud crab farming and pearl cultivation. He is the founder of Ranch Pearl Farm and Crab Farm, which also functions as the training and production institute, guiding the farmers, young entrepreneurs in scientific and aquaculture practices. With a low cost, small space, and high return model, he has demonstrated how modern techniques and smart management can create a significant income opportunities in aquaculture. Along with the production, he actively conducts hands-on training in pearl farming, focusing on practical aspects such as cultivation techniques, water quality management, and sustainability. Mayur Jagdale sir stands as a true inspiration for young farmers, agripreneurs, and proving that the innovation, knowledge, and dedication can redefine the future of Indian agriculture. We are truly honored to have him with us today as a part of Agri Sardi Kranti 2026. Sir, we are eager to learn from your journey as well as your experience. Without further delay, the stage is yours, sir. Please, I would like to kindly request you to start at the beginning of the session.
Sir, I request you to kindly begin the session. Okay. Hello. Yes, sir, you're audible. Okay, okay. Hi, I am Mayur from Maharashtra, Sangli district. मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियर था, कंपनी में 4-5 साल जॉब किया था। बाद में मैंने पर्ल फार्मिंग और क्रैप फार्मिंग का स्टार्ट किया था। अभी वो दोनों भी अच्छे तरीके से चल रहे। पर्ल फार्मिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है मेरा, प्लस हम पर्ल जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर, सभी जगह जाता है पर्ल्स। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज मसल्स? मतलब मसल्स एक तो क्या होता है, जो फ्रेश वाटर मसल्स रहता है उसको हम हिंदी में मसल्स बोलते हैं, मराठी में उसको शिंपला बोलते हैं, और इंग्लिश सॉरी हिंदी में उसे सीप बोलते हैं, इंग्लिश में उसे मसल्स बोलते हैं, और मराठी में उसे शिंपला बोलते हैं। मतलब जो फ्रेश वाटर सीप रहता है उसको हम मसल्स बोलते हैं, और सॉल्टेड वाटर जो रहता है सीप उसको हम ऑयस्टर बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंस है, समझना आना चाहिए। मसल्स क्या रहता है? मसल्स का कार्य क्या रहता है? पानी फिल्टरेशन करना। मतलब एक जो फ्रेश वाटर मसल्स रहते हैं उसके लिए एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी वो सक कर लेते हैं। जब पानी सक करती है तो पानी सक करते समय उसके शरीर के अंदर एक आध कंकड़ गया तो उसको बाहर निकलने का प्रयास कर देती है। जब बाहर नहीं आता उसके ऊपर नेकर छोड़ के नेचुरल पर्ल रेडी हो जाता है, उसको नेचुरल पर्ल बोलते हैं। और हम जो करते हैं वो कंजर्वेशन करते हैं। मसल्स के अंदर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर छोड़ते हैं, उससे वो पर्ल क्रिएट हो जाता है। हम जो करते हैं वो नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल भी बोलते हैं तो कंजर्वेशन पर्ल भी बोलते हैं। और नेचुरल पर्ल कैसे होता है? जब पानी सक करता है गलती से उसके शरीर के अंदर भी एक आधा कंकड़ गया तो नेचुरल पर्ल बन जाएगा। दूसरी बात क्या रहती है, जो भी मसल्स हम सर्जरी की प्लांटेशन करने के लिए ले लेते हैं उसका एज मैटर करता है। 6 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर का मसल चाहिए सर्जरी के लिए। और एक जो सीप रहती है उसका लाइफ 6 से 7 ईयर तक रहता है। और हम जब सर्जरी प्लांटेशन करने के लिए जो मसल्स लेते हैं वो एडल्ट लेते हैं, मतलब 2.5 साल के ऊपर का जो मसल्स रहता है वो हम प्लांटेशन के लिए लेना जरूरी होता है, क्योंकि एडल्ट मसल्स रहता है। एडल्ट मसल्स लिया तो पर्ल बिल सब कुछ अच्छा बन जाता है, ऑपरेशन सर्जरी भी अच्छी बन जाती है। उससे कम एज का मसल्स लिया है तो मोर्टेलिटी का रेशियो थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अभी टाइप्स ऑफ मसल्स, फ्रेश मोटर के मसल्स से उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक कोरानियस होता है, यल कोरानियस, एक होता है यल मार्जिनियस, और एक होता है पेरेशिया कोरोगाटा। ये 3 टाइप्स के मसल्स रहते हैं, उसमें से हम 2 ही टाइप के मसल्स यूज करते हैं। एक कोरानियस रहेगा और एक मार्जिनियस रहेगा। कोरानियस जो मसल्स रहता है उसके अंदर मिल्की व्हाइट कलर का पर्ल बन जाता है, और जो मार्जिनियस रहता है उसके अंदर लाइट गोल्डन कलर का पर्ल बन जाता है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जो येलोइश मसल दिखता है वो मार्जिनियस स्पेशीज है, और जो थोड़ा ब्लैक दिख रहा है 1 नंबर की इमेज है उसमें वो कोरानियस स्पेशीज का मसल्स है। ये 2 टाइप्स के हम मसल सर्जरी प्लांटेशन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सर्जरी प्लांटेशन करने की सह भी सकता है और स्ट्रॉन्ग पर्ल रहता है, सॉरी मसल्स रहता है। इसलिए हम कोरानियस और मार्जिनस स्पेसिस की ये फ्रेश वाटर के मसल्स हम प्लांटेशन सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट। प्री टैंक एंड पोस्ट टैंक। अभी हमें ये 2 टैंक की जरूरत होती है। प्री और पोस्ट टैंक की जरूरत क्यों होती है? जब हम जब मान लो आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सेटअप लगा दिया है, तो हमें सबसे पहले प्री टैंक की जरूरत होती है। प्री टैंक में हम क्या करते हैं? जब आपके पास मसल्स आ गए, सेटअप रेडी होने के बाद आपके पास मसल्स आ गए, तो आने के बाद हम उसको प्री टैंक कंडीशन में रख देते हैं। प्री टैंक कंडीशन में मसल्स को क्यों रखते हैं?
उसमें 10 डेज के लिए उनको सर्वाइवर होने के लिए उस पानी में रखना पड़ता है। उसमें 1 बाय 1 डे पानी चेंज करना पड़ता है, उसको फूड देना पड़ता है, पानी के पैरामीटर्स मेंटेन रखना पड़ता है, लाइक पीएच, टीडीएस, जो भी हो, अमोनिया, सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है। ऑक्सीजन रहे, वो सब कुछ मेंटेन रख के हम प्री टैंक में 10 दिन के सर्वाइवर होने के लिए उसको रख देते हैं। 10 दिन के बाद हम उसका सर्जरी करते हैं। इसीलिए हमें प्री टैंक की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है, क्योंकि हमारे पानी को जो भी मसल्स है वो मैच कर लेती है। उसमें जिस मसल्स को हमारा पानी मैच हो जाएगा वही बचेगा, जिसको मैच नहीं होगा, मतलब मानो ट्रांसपोर्ट में थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा थोड़ा वीक किया, या बीमार जो मसल्स थे वो डेड हो जाते, इसीलिए हमें प्री कंडीशन में रखते। एक बार सेट होने के बाद हम उसकी सर्जरी करते। अभी पोस्ट टैंक किस लिए होता है, जब आने के बाद मसल्स हम प्री टैंक में 10 दिन के लिए सरावर रखते हैं, बाद में हम उसका सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद हमें उसे पोस्ट टैंक में शिफ्ट करना पड़ता है। पोस्ट टैंक में हम सर्जरी किया हुआ मसल्स 5 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए रखने के बाद, मतलब जिसका हम सर्जरी किया है वो 5 दिन के लिए वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो भी उसमें बचेगा, जिंदा रहेगा, उसको मेन टैंक में शिफ्ट करते हैं। इसीलिए हमें प्री और पोस्ट टैंक की जरूरत है। प्री टैंक में सर्वाइवर होने के लिए 10 डेज, बाद में पोस्ट टैंक में बाद में पोस्ट टैंक में उसको सेट होने के लिए, ऑपरेशन करने के बाद सेट होने के लिए हम पोस्ट टैंक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट। सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, हमें जो सर्जरी करने के लिए प्रॉपरली, एक तो सबसे पहले सर क्लिप प्लायर की जरूरत होती है, बाद में स्पैचुला लगता है, स्टॉपर लगता है, कॉटन क्लॉथ लगता है और टेबल लैंप लगता है। इन चीजों के हमें सर्जरी के लिए जरूरत रहते हैं। सर क्लिप प्लायर का यूज किस लिए किया जाता है, उसका मुंह खोलने के लिए उसका यूज किया जाता है। स्पैचुला का यूज उसको कट करने के लिए, स्किन कट करने के लिए स्पैचुला का यूज किया जाता है। जो स्टॉपर रहता है, जो सर्जरी करते समय उसका मुंह खोलने के बाद स्टॉप करने के लिए स्टॉपर या लकड़ी का इस्तेमाल हम करते थे। और टेबल लैंप का यूज नॉर्मली हमें फोकस, मतलब कंसंट्रेशन रहता है। घर में जो लाइट ऑन रहती है उसके ऊपर सर्जरी किया तो कंसंट्रेशन नहीं रहता। टेबल लैंप लगा के सर्जरी किया तो हमें सब कुछ प्रॉपरली अच्छी तरीके से दिख जाता है। इसीलिए टेबल लैंप लगा के सर्जरी करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसमें। नेक्स्ट। न्यूक्लियस, आपको ये सामने दिख रहा है, एक तो प्लांटेशन करने वाली बॉडी होती है, उसको टेक्निकली नाम न्यूक्लियस है। हम जो शरीर के उसके अंदर प्लांटेशन करते हैं, दो टाइप के एक न्यूक्लियस होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब शेल डस्ट पाउडर का न्यूक्लियस रहता है, और 2 नंबर का जो रहता है वो एमओपी रहता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो न्यूक्लियस रहता है, लाइक उसमें रिलीजन कहते हैं, गणेश जी, शिव जी, जो भी हो उसी शेप में हमें मिलता है, मतलब उसको डिजाइनर पर्ल बन जाता है उससे। इसलिए हम वो कैल्शियम कार्बोनेट का न्यूक्लियस का यूज किया जाता है। ओके। जो रिलीजन में आता है। और जो एमओपी रहता है वो मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं। 2 नंबर का जो रहता है वो एमओपी रहता है, मदर ऑफ पर्ल। उसमें 4 ही शेप मिलते हैं, हार्ट शेप, ड्रॉप शेप, ओवल शेप, हाफ राउंड। ये 4 ही शेप इसमें से हमें मिल जाते हैं एमओपी से। लेकिन एमओपी का जो पर्ल बनता है वो प्योरली और प्योरली 100% प्योरली पर्ल रेडी हो जाता है। ऐसा क्योंकि जो हम कैल्शियम कार्बोनेट का न्यूक्लियस यूज करते हैं उसमें क्या किया जाता है कि पर्ल शेल पाउडर प्लस केमिकल मिक्स करके पैटर्न बनाया जाता है। मतलब 60% पाउडर रहते हैं, 40% केमिकल रहता है। दोनों का मिलावट करके डाई पैटर्न निकाल के हमें वो रिलीजन वाले पर्ल्स निकल के आते हैं। लेकिन जो एमओपी रहता है वो क्या होता है कि बाहर के जो, जैसे इंडोनेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ के जो बड़े वाले सेल्स रहते हैं उसके अंदर लेजर कटिंग करके वो एमओपी का बनाया जाता है। बाद में उसे मैन्युअली शेप दिया जाता है अच्छी तरीके से। इसीलिए 2 टाइप्स के रहते हैं। और जो एमओपी का न्यूक्लियस रहता है वो प्रॉपरली ओरिजिनल प्योर 100% सेल का ही पार्ट होता है। इसीलिए पर्ल बनते समय भी उनको कुछ दिक्कत भी नहीं आती और क्वालिटी फुल एमओपी से पर्ल हमें मिल जाता है। नेक्स्ट। मेन टैंक स्ट्रक्चर। मेन टैंक स्ट्रक्चर इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो बायोफ्लॉक टैंक में कर सकते हैं, इजराइल टेक्नोलॉजी का टैंक है।
एक तो बड़े वाले पाउंड में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं। बाद में छोटा सा मिनी सेटअप करना है तो आप 1000 लीटर के सिंटेक्स टंकी में भी कर सकते हैं। प्लस वर्टिकल पर्ल फार्मिंग भी कर सकते हैं। इनडोर आउटडोर हमें जैसा चाहिए उस हिसाब से हम वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट हो गया। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स, मतलब क्या रहता है कि जो मसल्स की उत्पत्ति होती है तो फिश की वजह से हो जाते हैं। फिश की वजह से मतलब क्या होता है, एक जो मसल्स रहता है जून जुलाई अगस्त में एग्स डालता है छोटे छोटे, वो क्या करता है फिश को रहता है, मतलब जिस फिश के शरीर के ऊपर छिलके रहते हैं उसको अट्रैक्टिव कर लेता है। जैसे रोहू कटला ये फिश हमें चाहिए पर्ल के साथ, मतलब सॉरी मसल्स के साथ। जो ये पर्ल मसल्स क्या करते हैं फिश को अट्रैक्टिव करते हैं। अट्रैक्टिव करने के बाद उसके शरीर के ऊपर लार्वा का स्प्रे करते हैं। टेक्निकली उसे लार्वा बोलते हैं, आपको समझने के लिए छोटे छोटे एग्स रहते हैं उसका स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद 40 दिन के बाद छोटे छोटे मसल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो पानी में गिरते हैं और बाद में बड़े होके हम उसका सर्जरी प्लांटेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे फ्रेश वाटर लाइफ साइकिल है मसल्स का। ओके नेक्स्ट। रॉ पल्स, रॉ पल्स मतलब क्या होता है, जब पल रेडी हो जाता है, मतलब एक तो हम दो टाइप्स के प्लांटेशन करते हैं, एक गोनाड प्लांटेशन करते हैं और जो दूसरा रहता है वो मेंटल कैविटी प्लांटेशन करते हैं। मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन कर देते हैं। हम जो प्लांटेशन करते हैं वो मेंटल कैविटी के ऊपर हम प्लांटेशन, मतलब सेल कवच के ऊपर हम प्लांटेशन करते हैं। उसमें से पर्ल निकलने के बाद हमें उसे, एक तो रॉ पर्ल्स रहते हैं उसका बाद में कटिंग फिनिशिंग पॉलिशिंग करके बाद में हम वो ज्वेलरी में यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, बाद में आयुर्वेदा में यूज किया जाता है, फिर बाद में ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो कॉस्मेटिक हो उसमें सभी जगह हम पर्ल्स का पाउडर यूज किया जाता है। नेक्स्ट। फाइन पर्ल मतलब कटिंग पॉलिशिंग होने के बाद जो शेप हमें मिलता है, बाद में आप उसको सोने या चांदी या गोल्ड सिल्वर किसी में भी हम यूज करके पेंडेंट्स बना के गले में पहन सकते हो, अंगूठी या कान का बनाने के लिए हम वो पहन सकते हैं। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल फिनिशिंग वो पर्ल्स रहते हैं। नेक्स्ट। पर्ल ज्वेलरी आप देख रहे हो इमेज में, हम जो पेंडेंट्स रहते हैं उसमें हम गले के लिए पहनने के लिए भी यूज किया जाता है, फिर बाद में ऑर्नामेंट्स में भी सब सारे पर्ल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट। ओके थैंक यू। So would you किसी को, like to take the questions from the pearl हाँ किसी farming को, now itself? किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। मयूर सर, आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार जो है अभी पर्ल का प्रैक्टिकल एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे तो फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। आई थिंक दैट विल बी बेटर। फिर बाहर ओके अंधेरा भी हो जाएगा। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ, you can stop sharing Chatrisa and we will be starting this session after completion of first one, right? ओके आपको मैं सब स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। Yes, please. आप सामने ये दिख रहे हो वर्टिकल का पर्ल फार्मिंग का स्ट्रक्चर है, मतलब जिसके पास जगह कम होती है आप इसमें वर्टिकल में आप इसके अंदर प्लांटेशन करके इसके अंदर हम मसल्स रख सकते हैं। वर्टिकल पर्ल फार्मिंग का स्ट्रक्चर है जिसके पास जगह कम है, गैलरी में या पोर्च के में या टेरेस के ऊपर करना है तो ये छोटा आप वर्टिकल का सेटअप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इनलेट होता है, ऐसे नीचे मोटर्स होते हैं
सभी जगह सभी टैंक में जाके ऐसे पानी करते हैं। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्रिएशन होता है। जब हमें टैंक का पानी छोड़ना होता है, क्लीन अप करना होता है, तो ये वॉल होता है, ऑन किया तो पानी पूरा बाहर निकल के जाता है और नया पानी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। इसका पानी का पीएच लेवल, टीडीएस लेवल, टेम्परेचर सब कुछ हमें मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे कम जगह में या स्टार्टअप में आपको छोटा मिनी सेटअप करना है तो आप है वर्टिकल पर्ल फार्मिंग का स्ट्रक्चर कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि 1000 लीटर सिंटेक्स के अंदर ये छोटा सा आप सेटअप करके भी लगा सकते हैं। ऐसे छोटे 2 मिनी सेटअप है। जिसके पास जगह कम है तो आप ये वर्टिकल पर्ल फार्मिंग प्लस या 1000 लीटर सिंटेक्स टंकी में छोटा सा आप मिनी सेटअप कर सकते हो। प्री कंडीशन टैंक है। जब मसल्स आते हैं तो हम इस प्री कंडीशन टैंक के अंदर हम इसको सराइवर होने के लिए 10 डेज के लिए रख दिया जाता है मसल्स को। 10 दिन रखने के बाद हम उसका सर्जरी प्लांटेशन कर लेते हैं और सर्जरी करने के बाद उस मसल्स को उस साइड पोस्ट टैंक है, उस पोस्ट टैंक में हम ऑब्जर्वेशन के लिए 5 डेज रखते हैं। ऑब्जर्वेशन होने के बाद 5 दिन का ऑब्जर्वेशन होने के बाद हम उसको मेन टैंक में छोड़ देते हैं। ये प्री टैंक है, पोस्ट टैंक है उस साइड, और अंदर मेन टैंक है। मेन टैंक के हमारे अंदर के स्ट्रक्चर है। ये बायोफ्लॉक टैंक है इजराइल टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर हम ऑयल फार्मिंग का स्ट्रक्चर पूरा लगा दिया है। इसके अंदर सर्जरी करने के बाद इसके अंदर इस टैंक में हम 1.5 साल के लिए रख देते हैं मसल्स को पूरे। ओके सर। Okay, thank you, Mayur sir. Chaitya sir, please carry on the query session. हाँ, किसी को Thank you. कुछ डाउट सवाल है Yes, तो sir. आप पूछ सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। Yes, sir. Thank you, I sir, request for your so thank you, sir, for your detailed explanation of pearl forming and showing a practical structures related to the pearl forming. Now I request all the participants, instructions to all the participants. Those who have any queries are kindly requested to post their questions in the chat box. We will discuss about your queries related to ओके। pearl forming. Sir, we have a question from Abhay. Sir, operation was done. So, what is the pH of water and what is the temperature maintained for the tank? How may the cost of pearls and crops forming? So, he is the BSc Agriculture student from Hisars. ओके। एक तो हम पानी का पीएच लेवल 6.5 से लेके 8.5 मैक्स 9 तक हमें मेंटेन रखना पड़ता है। टेम्परेचर हम क्लाइमेट का चेक नहीं करते, टैंक के पानी का हम टेम्परेचर चेक करते हैं। हमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक हमें उसका पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और कम हो गए तो 10 तक आए या 5 तक आ गए कम होके, तभी कोई दिक्कत नहीं आती उसके लिए। क्योंकि जो मसल्स रहता है, जितना ठंडा एरिया रहेगा, जितना ठंडा क्लाइमेट रहेगा, उसके लिए हेल्दी रहता है वो ज्यादा। और 3000 मसल्स का सेटअप और स्ट्रक्चर हमें खड़ा करना है तो कम से कम एमओपी डाल के प्लांटेशन करके
टैंक के साथ लगभग 2.5 लाख तक पूरा खर्चा आ जाता है, स्ट्रक्चर के साथ पूरा ओवरऑल। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Shivangi. Sir, what is the cost of setup for the pearl millet? And in initial days, how can someone start raising a pearl millet? Pearl farming, sir. नहीं, कुछ एक बार रिपीट, सॉरी। हेलो। Sir, what is the cost of setup for the pearl farming? In the initial days, how can someone start raising the pearl farming? मतलब कॉस्ट कैसे होती है कि आपने छोटा सेटअप किया तो कम खर्च में हो जाएगा। मान लो 300 मसल्स का मिनी सेटअप किया तो 25 से लगभग 30,000 तक हो जाएगा। और 3,000 का किया तो हमें 2 से 2.5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख खर्चा आ जाएगा हमें, 50 लाख। Thank you, sir. Next, we have a question from Umukant Yadav. The shells of the mussels in my pond are not opening. What disease could be it is? सॉरी, क्या पर्ल्स नॉट? Sir, the shells of mussels in my pond are not opening. What disease could it be? मतलब उनके मसल जो है मुंह नहीं खोलते हो, ऐसे पूछ रहे हो? Yes, sir. The shells of the mussels are not opening. ओके ओके। कैसे होता है जब मसल्स को कुछ मतलब इधर उधर जाना होता है या मूविंग करना है तभी वो मुंह खोल लेते हैं। ऐसे अदरवाइज वो 24 आवर्स मुंह खोल के, कभी जो भी पूरा मुंह खोल के बैठा होता है वो मर गया होता है, मसल्स जिंदा नहीं रहता। और जब भी उनको केयरिंग करना, मतलब यहाँ से यहाँ मूविंग करना है, तभी वो मसल्स मुंह खोलते हैं, अदरवाइज मुंह नहीं खोलते ज्यादातर वो, क्योंकि वो बंद मुंह करके ही उनका फूड बीड है वो सब कुछ सक कर लेते हैं उसके अंदर, वो शरीर के अंदर। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Pupala Shri. Where can we get the good quality of mussels and how much they cost approximately? हाँ। एक तो कैसा होता है कि सभी रिवर में सभी जगह मसल्स मिल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी फूड और चेकआउट करके मसल्स लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। उसके अंदर जो लस्टर्स होता है, शाइनिंग होता है कवच के अंदर, वो देख के सब कुछ करके लेना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली उसका कॉस्ट पर पीस 10 रुपीज आ जाता है उसका। मेरे पास भी मसल्स पूरे अवेलेबल रहते हैं, कभी किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे। 10 रुपीज पर पीस रहता है उसका प्राइस। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Prachi Bhokte. What are the expenses in the pearl farming and what profit do we get from it? व्हाट आर द Sir, what are the expenses in the pearl farming and what profit do we get from it? व्हाट प्रॉफिट? Sir, what profit we will get from it? ओके, मयूर जी वो पूछना चाह रहे हैं कि हम पल फार्मिंग जब करते हैं इसमें कितना खर्चा आता है और कितना हमें इसमें मुनाफा हो सकता है, तो उसका आप थोड़ा सा एस्टिमेट बता दीजिएगा। ओके। 3,000 मसल्स का सेटअप लगा दिया तो हमें लगभग 2 से 2.5 लाख तक खर्चा आ जाता है प्रॉपरली। ओके, सेटअप के साथ पूरा। अब एक टेंटेटिव आपको बता देता हूँ। मान लो हमने उसके अंदर 3,000 मसल्स डाल दिए, 1.5 साल तक उसका केयरिंग करना पड़ता है। 1.5 साल के बाद हमें उसमें से पर्ल मिल जाता है। 1.5 साल के बाद जो भी, मतलब मान लो 3,000 मसल डाले, उसमें से 1.5 साल में 500 मसल डेड हो गए, बचेंगे हमारे 2,500 मसल्स बचेंगे। 2,500 में से मोती क्रिएट होगा 5,000, एक मसल्स में 2 मोती बन जाते हैं, इसीलिए 2,500 में से हमें 5,000 मोती पर्ल्स मिल जाएंगे, रॉ पीस। उस 5,000 में भी हमने पकड़ लिया है कि 1,000 पीस खराब पकड़ लिए, तो 4,000 पीस हमें क्वालिटी भी मिल गया। रॉ पर्ल जब सेल आउट करते हैं तो 180 से लेके 200 रुपीज तक पर पीस का हमें प्राइस मिलता है, एमओपी का ओनली। हाँ, तो 200 से भी पकड़ लिया, क्वालिटी फुल हो तो 200 के ऊपर भी मिलेगा। 200 से भी अभी अभी प्राइस पकड़ लिया तो हमारे पास 4,000 पीस है, 8 लाख रुपीज उसका हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, सब लॉसेस पकड़ के आपको सब कुछ ए टू जेड बता दिया उसमें।
Thank you, sir. Sir, next we have a question from Ashutosh. Sir, is there any diseases in the muscles? How can we manage it? ओके, एक तो मसल्स को जो भी डिसीजेस आते हैं वो क्या होता है कि इन्फेक्शन ज्यादा होता है। मान लो हम क्या करते हैं कि कहाँ से भी घूम के आ गए या कोई भी आ गए तो सीधा पानी के अंदर हाथ डालते हैं हमारा, तो उसमें क्या होता है हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया जर्म्स रहते हैं उसमें से भी इन्फेक्शन उसको हो सकता है। कभी भी पानी के अंदर चेकआउट करते समय हैंड वॉश करके डाल दिया तो सबसे बेटर रहेगा। और उसके जो भी क्यूरीज करने की जितना आप केयरिंग करोगे उसका उतना हमें मोर्टेलिटी का रेशो कम हो जाएगा, डिसीज भी कम हो जाएंगे। एक तो हम क्या करते हैं मॉक्स 500 की अल्मोक्सिलिन की कंटेंट की टैबलेट्स देते हैं। उससे क्या होता है थोड़ा नॉर्मली कम हो जाता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट्स आता है उसमें से। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Shubman. Sir, kindly elaborate the surgical practices. सर्जिकल प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा elaborate कर। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं कैसे होता है कि एक तो इसका मेरा ट्रेनिंग सेशन रहता है 2 दिन का, उसमें आपको A to Z सिखाया जाता है। उसका टैंक स्ट्रक्चर, केयरिंग, फीडिंग, सर्जरी, पैरामीटर, कैसे केयरिंग करना, सब कुछ A to Z आपको सिखाया जाता है उसमें, केयरिंग कैसा करना। और आपको जब सर्जरी एक बार यहाँ सीख लिया तो घर में जब शुरुआत में आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा उसमें से आप आ जाता है। बाद में हम एक बार कंटिन्यू किया तो आपको सर्जरी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। लेकिन सर्जरी करने की भी ट्रिक्स होती है, खाली ऐसा नहीं कि लोगों को सबको क्या लगता है कि मुंह खोलना और उसके अंदर हम न्यूक्लियस प्लांटेशन कर दिया मेरा काम हो गया। लेकिन सर्जरी करने के भी ट्रिक्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियस रहा कहाँ रखना है, कहाँ प्लांटेशन करना है, किस जगह रखना है, कहाँ से कितना लस्टर कोटिंग गिरेगा, ये सब कुछ इसमें सीखना इम्पोर्टेंट चीज है। बाद में आपको पता चले, आप यूट्यूब पे हो या फेसबुक इंस्टा पे वीडियो देखते होंगे ऐसे सर्जरी प्लांटेशन करते हैं, खाली नॉर्मली दिखाया जाता है। लेकिन प्रॉपरली सर्जरी जब यहाँ आप आके करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सेशन लेके उसमें हमें सर्जरी प्लांटेशन नहीं समझ में आ जाएगा उसमें। इसलिए प्रॉपरली चाहिए तभी आप पर्ल फार्मिंग कर सकते हो, उसमें से नॉलेज चाहिए 100%। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Praveen Kumar, sir. Sir, what is the difference between natural pearl and the artificial pearl? How can we differentiate? ओके, जो नेचुरल पर्ल रहते हैं ना उसको कैसे अनशेप, मतलब एक ही रेगुलर साइज के आपको पर्ल नहीं, मतलब कोई 2 mm का रहेगा, 4 mm का रहेगा, या थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, मतलब प्रॉपरली शेप नहीं आता। थोड़ा सा जैसे लस्टर गिरता है उसी सब जैसे बॉडी प्लांटेशन करते हैं उसी हिसाब से वो पर्ल नेचुरली, नेचुरल जो पर्ल रहता है वो ठंडा रहता है। और आर्टिफिशियली पर्ल जो रहते हैं, मतलब दोनों में पर्ल में से डिफरेंस बता रहा हूँ। मतलब पर्ल और आर्टिफिशियली, मतलब जो प्लास्टिक जैसे मोती मिलते हैं मार्केट में उसमें क्या होता है कि एक ही जैसे शेप का आपको दिखेगा। जो ओरिजिनल जो पर्ल रहता है वो ठंडा रहता है, वो समझ में आ जाता है पर्ल है क्या फेक पर्ल है, सब कुछ समझ में आ जाता है उसमें। ओके। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, next we have a question from Durvin Vikat. Sir, I want to know the initial cost for the start and any some of the government initiatives and how to the sources of muscles. एक तो गवर्नमेंट की से सब्सिडी भी मिल जाती है हमें, डिपेंड फॉर आपका स्टेट हो या डिपेंड फॉर आपका इधर डिस्ट्रिक्ट हो रहता है। हर एक जगह फिशरी डिपार्टमेंट रहता है, या हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जिला उद्योग केंद्र एक रहता है। वहां आप जाके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आपको उसकी सब्सिडी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। थोड़ा चेक किया तो बेटर है, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहता है, आप चेकआउट कर दो आपको समझ में आ जाएगा। Thank you, sir. Sir, next we ओके, have a question from Basoraj. Sir, if we started with 3,000 pearls, what is the duration to get the returns and how much it will be the profit for the like अच्छी investment of? अच्छी तरीके से केयरिंग की, उसको अच्छी तरीके से फीडिंग डाला, टाइम टू टाइम चेकआउट किया तो हमें अच्छा वाला पर 1.5 साल में मिल जाता है। थोड़ा फीड कम किया, केयरिंग ज्यादा नहीं की तो टाइम पीरियड ज्यादा ज्यादा जाता है, ऐसा रहता है वो। Okay, sir. टाइम And sir, what is the main risk factor in pearl forming? मेन रिस्क इसमें तो रिस्क क्या है कि एक तो आपको टाइम टू टाइम, लोगों को क्या लगता है, एक
एक एग्जांपल लेता हूँ, जब भी हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, एक हमारा शेड्यूल होता है फूड खाने का, सुबह हो या शाम हो, जब भी भूख लगती है उस हिसाब से हम खाना खा लेते हैं। लेकिन जब आपको पर्ल को खाना, सॉरी मसल्स को खाना डालना है, तो उसका भी एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ता है, टाइम टू टाइम फूड देना पड़ता है, हेल्दी फूड देना पड़ता है। उसी वजह से क्या होता है कि मसल्स भी हेल्दी रहता है और पर्ल भी अच्छा निकल जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सबको लगता है एक बार मेरा सर्जरी प्लांटेशन हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया, पर्ल ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को चीज समझ में नहीं आती कि हमें 1.5 साल तक उनका केयरिंग करना है। अच्छी तरीके से टाइम टाइम सभी चीज किया तो आपको अच्छा क्वालिटी का पर्ल उसमें से हमें मिल जाएगा। ओके। Okay, sir. Thank you, sir. So next we have a question from Mayuri. So what are the biggest challenges the beginners face in the pearl farming and how can they overcome from them? ओके। जो भी नए पर्सन रहते हैं उन्होंने एक तो सबको चीज समझ में आना चाहिए कि शुरुआत में लोग क्या करते हैं कि हमारे इंडिया वाले लोगों का एक ही ड्रॉबैक है कि सब लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर सबका फोकस रहता है, अरे हम इतना मसल्स डालेंगे तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं नए लोगों को इतना ही बताऊंगा कि शुरुआत में हम कम से स्टार्टअप करें। एक तो कम से स्टार्टअप करने के बाद हमें क्या हो जाता है कि जो दिन डे बाय डे जो केयरिंग रहती है वो समझ में आ जाता है, हमसे क्या गलती होती है वो समझ में आ जाता है। इसीलिए जो भी शुरुआत में करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो कम मसल से स्टार्टअप करो। लाइक शुरुआत में 300 या 500 मसल से भी स्टार्टअप किया तब भी चलेगा, लेकिन कम करो, लेकिन क्वालिटी फुल करो। जो भी आप जब समझ में आ जाओगे कि एक 6 मंथ के बाद तो हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बड़ा कभी भी नहीं करने, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है क्या होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी की। आपका पानी क्वालिटी फुल रहेगा या पैरामीटर्स अच्छे रहे तो मोर्टेलिटी का रेशियो भी उसमें से कम रहता है। पानी समझ में आया, जिस दिन आपको पानी आपका समझ में आ गया तो आप पर्ल फार्मिंग में किंग बन गए, ऐसा समझ लो। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Kanchan. So what is a typical lifespan of an oyster in your farm and how does it impact the production? नहीं समझ में नहीं आया समझ। Sir, a typical lifespan of oyster. डिफिकल्ट। Sir, lifespan of oyster in your farm. नहीं सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे क्या है। मयूर Sir, सर वो पूछना चाह रहे हैं कि इसका ना लाइफ साइकिल कितने दिन में पूरा हो जाता है। जब हम उसको, क्वेश्चन ये है पूरा कि क्या उसको खाने में क्या खिलाते हैं, उसको कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, और कितने दिन के बाद में वो पक करके तैयार हो जाता है और उसको हम फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसका लाइफ साइकिल कितने दिन में पूरा होता है। पर्ल बनने के लिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पर्ल बनने के लिए हमें प्रॉपरली उसका समय है 1.5 साल का, मतलब 18 मंथ्स का प्रॉपरली है। उसमें हम टाइम टू टाइम फीड दिया, मतलब रेगुलर विदाउट मिसिंग का, और अच्छी तरीके से केयरिंग किया तो वो 18 मंथ्स या 20 मंथ्स में रेडी हो जाता है। थोड़ा देखा नहीं, ज्यादा चेकआउट नहीं किया तो टाइम पीरियड ज्यादा बन जाता है, मतलब उसका 20 का 24 भी या 26 भी हो जाएगा ये मंथ। इसीलिए क्या करना पड़ता है, टॉप प्रॉपरली उसका फूड, और जो भी फूड देते हैं 10 टाइप्स के फूड रहते हैं अलग अलग, फाइटोप्लैंक्टन, स्पिरुलिना, एग्रीमिन, फोर पाउडर, ऐसे अलग अलग 10 टाइप्स के उसके फूड्स रहते हैं, विटामिन मिनरल सब कुछ देना पड़ता है। और उसका भी एक कैलकुलेट होता है कि इतने मसल्स को इतना देना, कैलकुलेशन रहता है, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से क्वालिटी का फूड दे दिया तो मसल्स भी अच्छा ग्रो हो जाता है, बल भी हमारा अच्छी तरीके से बन जाता है उसके अंदर। ओके। okay, sir. Sir, next we have a question from Abhay. Sir, can we do the pearl and crab farming in Haryana? And where we can sell the pearls in the market, about the market. ओके। आप पर्ल फार्मिंग और क्रैब फार्मिंग दोनों भी हरियाणा में कर सकते हैं, नो डाउट्स। इंडिया में किसी भी जगह पे किसी भी कोने पे दोनों भी सेटअप हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये पर्ल का मार्केट क्या रहता है कि हैदराबाद और जयपुर में इसका पर्ल का मार्केट है। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट हैदराबाद और जयपुर में है। एक्सपोर्ट भी आप पर्ल कर सकते हो। ओके। तो इसी जगह आप पर्ल सेल आउट कर सकते हैं, आपके हिसाब से बन गया रेडी। लेकिन मार्केट में यही दिक्कत रहती है कि क्वालिटी फुल और अच्छा पर्ल होना चाहिए। ऐसा ना भी हो खराब भी पर्ल है कोई भी ले लेगा, ऐसा नहीं होता। जो शाइनिंग क्वालिटी फुल पर्ल रहेगा वही सेल आउट हो जाएगा। आपको खुद से कोई बायर मिल गया है तो आप सेल आउट कर सकते हो, नहीं तो मैं भी सेल आउट करके देता हूँ, लेकिन उसमें परसेंटेज लेता हूँ।
Thank you, sir. Sir, next we have a question from Sharan. He is an BSc Agri student from Dharwad University, sir. Can the pearl farming be integrated with the other aquaculture practices for additional income? पर्ल फार्मिंग Sir, pearl farming can be integrated with other aquaculture practices like fisheries. हाँ, फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है पर्ल फार्मिंग, क्रैप फार्मिंग दोनों भी. Sir, he is asking, can the pearl farming can be integrated with other aquaculture practices for additional income? So from that we can get the additional income. हाँ, एडिशनल इनकम ही इसका इनकम सोर्स ही रहता है ना उसका भी. सॉरी. So thank you, sir. So next we have a question from Diksha Nayak. Sir, can you show the pearl samples which are produced by you, sir? ओके ओके. रॉ पर्ल से गणेश जी, शिव जी का इसमें दिख रहा है आपको. ये डिजाइनर पर्ल है. और दूसरा एमओपी के रहते हैं, हाफ राउंड पर्ल्स रहते हैं. ओके. Thank you, sir. Sir, next we have a question from Garima. So what kind of feed is to be provided to the mussels? 10 टाइप्स के उसके फूड रहते हैं. मतलब एक तो अलगीज डालते हैं हम, अलगी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ऐसे अलगीज डालते हैं उसको. स्पिरुलिना देते हैं. फिर विटामिन मिनरल्स, ये सब कुछ हम टोटल 10 टाइप्स के उसके फूड रहते हैं अलग अलग, उनको हम प्रोवाइड कर लेते हैं. Thank you, sir. Sir, next we have a question from Kamlesh. Both the pearl farming and the ornamental fish farming can be carried out simultaneously. हाँ, यस, हम फिश फार्मिंग और क्रैब फार्मिंग दोनों भी हम एक साथ कर सकते हैं. लेकिन उसको क्या होता है कि मसल्स के साथ हमें रोहू और कटला, ये दो ही फिश चल जाते हैं. इसीलिए क्या होता है, पर्ल का सॉरी मसल्स का रिप्रोडक्शन भी होता है और पर्ल फार्मिंग, फिश फार्मिंग हम दोनों एक साथ कर सकते हैं. लेकिन बड़े वाले पाउंड में हम करना चाहेगा उसको, क्योंकि छोटे स्ट्रक्चर में नहीं होता. बड़ा वाला पाउंड चाहिए, उसके अंदर पर्ल फार्मिंग, फिश फार्मिंग दोनों भी एक साथ हम कर सकते हैं. उसमें बॉक्स क्रैप फार्मिंग भी हो जाएगा, पर्ल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बॉक्स क्रैप फार्मिंग भी. लेकिन पाउंड चाहिए, 100 फीट बाय 100 फीट का पाउंड चाहिए, उसमें हम बना सकते हैं सब कुछ. Thank you, sir. Sir, our request is there, sir. Can you please show a live surgery if possible? नहीं सर, अभी नॉट पॉसिबल लाइव सर्जरी. Okay. Sir, sir, one question is from Viresh. Sir, can we see the surgery machine? यस यस. सर्जरी नॉट अ मशीन, इज अ किट. सर्जरी किट रहता है, उसमें क्या रहता है, स्पैचुला, जैसे आपने अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया था ना, वो आपने इमेजेस उसमें रहता है ना वो. सर क्लिप लायर रहते हैं इसमें, हम क्या इससे क्या करते हैं,
मसल्स का मुंह खोल लिया जाता है, इसे हम प्लांटेशन सर्जरी करने के लिए यूज किया जाता है, सर्कली प्लायर का। ओके। Thank you, sir. Sir, next we have a question from Manoj. Is there any hands-on training we can get in Karnataka region regarding the pearl farming? और एक बार बता दो थोड़ा। Sir, is there any hands-on training regarding the pearl farming in Karnataka region or near Bangalore regions? नहीं, नॉट इज पॉसिबल, मतलब यहाँ महाराष्ट्र में आके, मेरे यहाँ आके ट्रेनिंग सेशन आपको लेने पड़ेगा, क्योंकि मेरे यही यही इस जगह पे ऑल इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। वहाँ नॉट पॉसिबल। कैसे होता है, एक पर्सन के लिए हम नहीं जा सकते ना वहाँ ट्रेनिंग के लिए। कम से कम ज्यादा तो लोग होने चाहिए, मतलब 20, 25, 30 ऐसे ज्यादा लोग हो गए तो हम वहाँ ट्रेनिंग की बात करेंगे। उनका मेरा नंबर शेयर कर दो, बात करेंगे हम कैसे करना है, क्या करना है वो। Yes, sir. Sir, and Okay. next we have a question. यस, थैंक यू सो मच मयूर जी। अभी अंधेरा हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्रैब फार्मिंग। हाँ जी, क्रैब फार्मिंग का जो है आप एक बार लाइव दिखा दीजिए, फिर वापस ओके से ओके आप हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे, क्योंकि वो अंधेरे में थोड़ा इशू आएगा अपने को ना। ओके। जी जी। हाँ ठीक है। क्रैब फार्मिंग, हाँ तुला पण बोल नंतर। Dear participants, now Mayur sir will show us the practical of crabs, and then we will be moving to the theoretical part, right? थोड़ा सा डिटेल में मयूर सर आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइएगा क्रैब फार्मिंग के जो है ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या। प्रियंका, आपको सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो क्रैप फार्मिंग का मेन टैंक का स्ट्रक्चर है पूरा। मतलब यहाँ क्या रहता है कि इस साइड, एक साइड में वाटर रहता है, उसमें ऑक्सीजन के लिए मशीन लगा दी है, और दूसरी साइड में लैंड का एरिया रहता है। मतलब क्रैप क्या रहता है, उभयचर जीव रहता है, वो पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। इसलिए हमने दो पार्टीशंस बनाए, एक साइड में है वाटर एरिया, एक साइड है लैंड का एरिया। उसके ऊपर हम पेड़ पौधे पूरे लगा दिए, क्योंकि क्रैब को छुपने के लिए हमने जगह बना दी है। सामने आपको दिख रहा है वो फॉगर सिस्टम बना दिया है। हम टैंक के अंदर क्या करते हैं, नॉन नेचुरली बारिश गिर जाती है, उससे क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन भी रहता है, और क्रैब को महसूस होता है अच्छी तरीके से, और मोर्टेलिटी का रेशो भी उनका कम रहता है। मेन टैंक का पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें फीड डालने के लिए हमने छोटे छोटे डोर्स भी बना दिए, डोर लगा दिए हैं। डोर के अंदर हम इसमें फूड डाल देते हैं, इसे इस तरीके से अंदर जाने की कोई जरूरत भी नहीं रहती। और हमें जब टैंक का पानी छोड़ना है तो यहाँ आउटलेट का सिस्टम बना दिया है। ऐसे हम पानी ऑन कर लेते हैं, पूरा पानी निकल के 0 0 टैंक का पानी बाहर निकल के पूरा यहाँ से बाहर जाता है। इस तरीके से पानी हम टैंक का पूरा अंदर का छोड़ देते हैं इसके अंदर से। ये है टैंक का, क्रैप का मेन टैंक स्ट्रक्चर। दूसरा ये सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो हैचरी का टैंक है, क्रैब हैचरी का टैंक है। इसके अंदर हम क्रैब रिप्रोडक्शन के लिए छोटा सा एक टैंक बना दिया है। उस टैंक के अंदर ही हमने बॉक्स क्रैब फार्मिंग का भी स्ट्रक्चर है, वर्टिकल एक बॉक्स में एक क्रैब रहता है। इसके अंदर से हम फूड डालते हैं, इसके अंदर नीचे ऑक्सीजन की मशीन है, पानी हर एक टैंक बॉक्स में घूम के रिटर्न फिर से नीचे उतर जाता है। ऐसा ये बॉक्स क्रैब फार्मिंग है।
और सामने आपको दिख रहा है वो पाइप बॉक्स सॉरी पाइप क्रैप फार्मिंग है, वर्टिकल पाइप क्रैप फार्मिंग है। दोनों स्ट्रक्चर है, प्लस नीचे हैचरी का टैंक है। तीनों हमने एक साथ ही बना दिया है, एक ही स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। एक पाइप क्रैप फार्मिंग का स्ट्रक्चर है। इसमें एक पाइप 10 फीट की पाइप है, एक पाइप में 5 क्रैप रहते हैं, हर एक का कंपार्टमेंट डिवाइडेशन किया है। इसके अंदर हमने क्रैप रख दिया है। और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये स्टोरेज टैंक। जब मुझे क्रैप सेल आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मेन टैंक से क्रैप निकाल के बाहर लेके आते हैं, रख देते हैं स्टोरेज टैंक में। हम क्रैप को रख देते हैं, जब सेल आउट करना है उसके पहले हम इसके अंदर रख देते हैं। आपको ये सामने क्रैप दिख रहे हैं। ऐसे हमारे टैंक के अंदर पूरे क्रैप है। जब सेल आउट करना है तभी हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है, पानी चेंज करना पड़ता है, फूड देना पड़ता है, सभी कुछ स्ट्रक्चर हम इसके अंदर ही कर लेते हैं। ओके, ऐसा है मेन टैंक स्ट्रक्चर है सामने। फिर बाद में बॉक्स क्रैप फार्मिंग, पाइप क्रैप फार्मिंग, हैचरी का स्ट्रक्चर और ये स्टोरेज टैंक, इतना क्रैप का स्ट्रक्चर बना दिया है फुल फिल प्रॉपरली। ओके, Thank you हाँ for the practical. Yes, sir. ओके। Sir, आप कुछ बोल रहे थे? Yes, sir. Sir, shall we move forward for the next presentation? हाँ, यस यस। Okay, Chaitri sir, please wait for a moment. Let me show the videos for the reference of the participant. Then we will move on to the presentation. Yes, sir. Definitely. And everything will be passed through this. All this water will be filtered over there. And this is the modern PVC craft farming. There is one more, that is bucket farming. So guys, it has a capacity of 800 grams. And after that, you need to transform to the bucket. And you can see each one is separated with one chamber. And each chamber have one crab. Because this is cannibalic animal, it can eat it themselves. And each female crab can produce about 5 lakh baby crabs. But it won't survive because this is cannibalic, that will eat themselves. So it will get a survival crabs of 5,000. So that is the highest risk. By having a crab farming, you can generate the baby crabs and you can sell the export quality. The female is very demand because it have the baby crabs inside the eggs. Look at the hard shell. It's very hard. So lovely. Crab farming in PVC system, export quality. Okay, now I will be sharing few more videos. And this pipe, this is the started from 35 rupees and now if you invest 500 rupees, you will get about 3,000 rupees after 30 days. Not supposed to take your finger to here. It will cut off your finger. This is the angina. It's very sensitive. You can see it's aggressive. It's very aggressive. This is Mr. Arun Das. First quality mud crab. It weighs about 1.5 kg. It's exporting to Singapore, Malaysia. Now we are in Cochin. You can see it's a modern farming. It's a massive big bucket. And you can see this is the salt water inside. And this is the air tube.
and you need to maintain it for 30 days. You have to bring this baby crab. It weighs about 300 to 500 grams, and it will change to 1.5 to 2 kgs. I can see there are two systems. One is bucket system and another one is PVC system. You need to circulate the water and you need to grow the crab. So you can see female anterior, the oval shape, and over here you can see the triangular shape. This is the male. So male is very aggressive in the export quality. The female is very demand because it have the baby crabs inside the eggs that we call as gold pon in Malayalam. It's have more weight over there and it's very delicious. So that's the reason why it's more demanding in export quality. Look at the hard shell. It's very hard. So lovely. Now I will be sharing few videos about pearl farming. Water we call it oyster, and freshwater we call this as mussels. This is Mr. Mayur Jagdali. Welcome to pearl farming, and one mussel costs about 10 rupees. So you need 3,000 mussels to plant in a biofloc system. So the total investment of mussel is about 30,000. You need a tank which costs about 35,000, and after that we need to feed them. We are providing them green algae and spirulina. It costs about 10,000. The total investment is 75,000. So guys, after 1 month you need to do the surgery and you need to install the nucleus, that is the carbon. After that, this cell that will react to that and they will form a conjugalin, or that is a calcium carbonate, and they will aggregate the calcium and later on the pearl will be formed. So this tank is having 3,000 mussels and about 500 will be dyed. The total 2,500 mussels. Each mussel produces 2 pearls, and right now the market rate is about 200 rupees. The total 5,000 pearls. That means the total 10 lakh. If you take out the investment of 75,000, the total profit is 9,25,000. So guys, after 1.5 years it's ready to harvest. You will be getting pearls. So lovely. Each pearl costs about 200 rupees. This is freshwater mussels. In saline water or seawater we call it oyster, and freshwater we call this as mussels. This is Mr. Mayur Jagdali. Welcome to pearl farming, and one mussel costs about 10 rupees. So you need 3,000 mussels to plant in a biofloc system. So the total investment of mussel is about 30,000. You need a tank which costs about 35,000, and after that we need to feed them. We are providing them green algae and spirulina. It costs about 10,000. The total investment is 75,000. So guys, after 1 month you need to do the surgery and you need to install the nucleus, that is the carbon. After that, this cell that will react to that and they will form a conjugalin, or that is a calcium carbonate, and they will aggregate the calcium and later on the pearl will be formed. So this tank is having 3,000 mussels and about 500 will be dyed. The total 2,500 mussels. Each mussel produces 2 pearls, and right now the market rate is about 200 rupees. The total 5,000 pearls. That means the total 10 lakh. If you take out the investment of 75,000, the total profit is 9,25,000. So guys, after 1.5 years it's ready to harvest. You will be getting pearls. So lovely. Each pearl naturally occurred in these mussels. So you can see this is the natural one and this is the nucleus we introduced. So we do surgery and we introduce this. You can see this is a heart shape, oval shape, and this is a round shape. According to the shape, you can just introduce to the mussels, and later on the conjugalin will form and the pearl will be formed. Basically for pearl farming, we introduce spirulina as a feed, but in this farm they are giving natural feed like rice flour and jaggery, egg and mustard, oil cake, they're all mixed and they're giving us a feed. When you dip this TDS meter in the water, it should show below 1,000, so that is the TDS. And if you dip this pH meter in the water, it should below 8.5, that is the pH. You need to collect the water from this pond and you need to add 8 drops of this solution
This is the test number 1 and test number 2. So after that, the color will be changed. So guys, it should be like 0.25. That is the range of the ammonium in this water. This is the dead mussels. So the mortality rate is high in pearl farming. If you introduce 10,000 mussels, you may get about 5,000 mussels alive. So lovely. You can see right here. This is a natural pearl. This is natural. I hope these videos are a little helpful for our participants. Now I request Ms. Chatrisa and Mr. Rohit to please continue with the session. Yes, sir. I'll be sharing the PPT. Sir, I request you to kindly move forward for the crab farming. ओके मयूर सर अभी अगला जो है क्रैब फार्मिंग पे स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज ओके ओके नेक्स्ट पेज सर नेक्स्ट पेज क्रैब मीन्स क्रैब एक तो फ्रेश वाटर के भी क्रैब रहते हैं सॉल्टेड वाटर के भी क्रैब अलग अलग से रह जाते हैं जो मैं जो करता हूँ फ्रेश वाटर क्रैब रहता है क्रैब कैसे रहता है उभयचर जीव है वो पानी में भी जिंदा रहता है पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है लेकिन वो धूप नहीं सह सकता ज्यादा ज्यादा धूप टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसका मोर्टेलिटी का रेशो बढ़ जाएगा ये जो फ्रेश वाटर क्रैब रहते हैं उसका वेट कैसे रहता है एक तो जो भी करता हूँ ब्लैक मड क्रैब है एक तो ब्लैक मड क्रैब रहता है उसको टेक्निकली ब्रोचेरा ऐसा बोल जाता है उसका वेट 500 से लेके 700 ग्राम या 800 ग्राम तक क्रैब बढ़ जा सकता है और ये फ्रेश वाटर क्रैब है नेक्स्ट अभी टाइप्स ऑफ क्रैब फ्रेश वाटर क्रैब जो रहते हैं उसमें ब्रोचेरा मतलब ब्लैक मड क्रैब एक होता है दूसरा जो रहता है वो जियोथेल्पिसा थेरानी मतलब येलो मड क्रैब रहता है और थर्ड वाला जो रहता है हम समंदर का जो रहता है सॉल्टेड वाटर का साइला सेरेटा के एक क्रैब रहता है उसका वेट कम से कम 1.5 से 2 केजी के ऊपर जो रहता है वो समंदर का क्रैब रहता है सॉल्टेड वाटर का मैं जो करता हूँ फ्रेश वाटर के क्रैब फार्मिंग कर लेता हूँ नेक्स्ट टैंक के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इसमें क्रैब फार्मिंग एक तो नेचुरल पाउंड जैसे हम बना सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट का टैंक बना दिया तो उसमें से हमें लगभग 2 से 2.5 टन तक माल निकल जा सकता है एक तो नेचुरली स्ट्रक्चर रहता है दूसरा क्या रहता है बॉक्स क्रैब फार्मिंग का भी स्ट्रक्चर रहता है और पाइप क्रैब फार्मिंग का भी स्ट्रक्चर रहता है जो टैंक स्ट्रक्चर है वो नेचुरली टैंक है उसमें हम क्या करते हैं डिवाइडेशन बना देते हैं आधे में पानी रहता है आधे में लैंड का एरिया रहता है जैसे आपको अभी मैं जाके दिखा के आया था उसमें 2 टाइप्स रहते हैं उसके अंदर ये है नेचुरल टैंक स्ट्रक्चर मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए और उससे भी बड़ा हो गया तो नो डाउट ओके नेक्स्ट अभी जो है वर्टिकल क्रैब स्ट्रक्चर मतलब एक तो हम बॉक्स क्रैब फार्मिंग कर सकते हैं नहीं तो एक दूसरा पाइप क्रैब फार्मिंग कर सकते हैं मतलब ये दो स्ट्रक्चर हम क्यों बना देते हैं जिसके पास जगह कम हो इसीलिए उसके लिए हम पाइप क्रैब फार्मिंग और बॉक्स क्रैब फार्मिंग में कर सकते हैं लेकिन पाइप और बॉक्स फार्मिंग में हम क्या कर सकते हैं छोटा क्रैब डाल के बड़ा करके सेल आउट कर सकते हैं
लेकिन नेचुरली स्ट्रक्चर बना दिया तो उस नेचुरली स्ट्रक्चर में हम उसका रिप्रोडक्शन भी मतलब क्रैब का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन पाइप और बॉक्स में हम रिप्रोड्यूस क्रैब नहीं कर सकते। खाली उसको छोटा क्रैब बड़ा करके हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। जिसके पास जगह कम होते है, टेरेस के ऊपर करना है या गैलरी पोर्च में करना है, कम जगह है, तो हम उसका नेचुरली सॉरी पाइप क्रैब फार्मिंग का स्ट्रक्चर उसका हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, क्रैब सीड्स क्या रहता है, एक जो फीमेल क्रैब रहती है वो दो फीमेल क्रैब 250 से लेके 300 तक छोटे छोटे सीड्स हमें दे सकती है नेचुरल। मतलब इतने सीड्स हमें एक क्रैप से हमें मिल जाते हैं। जब सीड छोटे होते हैं तो उसका केयरिंग भी हमें करना पड़ता है उसी प्रकार से। जब सीड बड़ा होने के बाद हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। छोटे छोटे क्रैप के सीड्स रहते हैं। एक फीमेल क्रैप 250 से लेके 300 तक छोटे छोटे सीड्स हमें दे सकती है। नेक्स्ट, क्रैब लाइफ साइकिल कैसे रहते हैं कि जब हम छोटे क्रैब रहते हैं उसको हम बड़े कर लेते हैं। बड़े करने के बाद उसको हम सेल आउट कर देते हैं। जब जो छोटी फीमेल्स रहते हैं जून जुलाई अगस्त में छोटे छोटे सीड्स देते हैं। उसके बाद में झोरा बन जाता है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बड़ा होने के बाद हम एडल्ट क्रैब होने के बाद उसको जो 250 ग्राम के ऊपर का है वो हम सेल आउट कर लेते हैं। और उसके अंदर का जो रहता है मतलब 100 से लेके 150 ग्राम्स को उस क्रैब को हम ब्रीडिंग करने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मेल क्रैब और फीमेल क्रैब आइडेंटिफिकेशन। जो मेल क्रैब रहता है उसके 1 नंबर की इमेज है, उसमें जो क्रैब दिख रहा है वो फीमेल क्रैब है। उसके पेट के निचले साइड में यू जैसा उल्टा यू जैसा शेप रहता है। और जो मेल क्रैब रहता है उसके नीचे ए जैसा शेप रहता है। ऐसे मेल फीमेल एडल्ट क्रैब हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, क्रैब स्टोरेज टैंक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो जब क्रैब हमें सेल आउट करना होता है तभी हम क्या करते हैं मेन टैंक के क्रैप निकाल के स्टोरेज टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे डिफरेंट फॉर ऑर्डर किसी का 100 kg या 200 kg क्रैप्स रह गया तो उस हिसाब से हम ऑर्डर जब आता है तभी क्या करते हैं मेन टैंक से क्रैप निकाल के स्टोरेज टैंक में उसको शिफ्ट करते हैं। और स्टोरेज टैंक में जब भी ऑर्डर डिस्पैच करना है तभी स्टोरेज टैंक से निकाल के पैकेजिंग एक सिस्टम रहता है उसमें पैकेजिंग करके हम उसको सेल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रैप पैकेजिंग और मार्केटिंग। क्रैप पैकेजिंग हम क्या करते हैं जो मार्केट में सब्जी मंडी में जो कैरेट रहता है प्लास्टिक का 10 kg के कैरेट में हम 5 kg क्रैप्स डालते हैं। उसको ऊपर से गोनी गनी बैग जो रहता है उसको पैक करके उसके अंदर से हम शिफ्ट कर देते हैं। अभी इसका मार्केटिंग क्या रहता है क्रैप का मार्केटिंग एक तो हम फिश मार्केट में हम क्रैप सेल आउट करते हैं। होटल्स लाइन्स में जो सी फूड या कौन से भी होटल्स में होटल लाइन में हम क्रैप सेल आउट कर सकते हैं। और अदरवाइज खुद का भी होटल डाल के हम उसका सेल आउट कर सकते हैं रेसिपीज बना के। और दूसरा हम यहाँ आके जब भी आपका जो एक जो फार्म रहता है वहाँ के कलेक्शन करके भी लोग लेने वाले होते हैं। ऐसा इसका मार्केटिंग रहता है। ज्यादातर फिश मार्केट में इसका सेल आउट हो जाता है। नेक्स्ट,
थैंक यू। किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ लो आप। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस वर्ड सर। सर अभी थोड़े से क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द प्रीवियस पीपीटी इटसेल्फ, तो मैं थोड़े से उनसे पूछूंगी एंड आई विल चूज द कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, एंड उसके बाद मैं थोड़ा अभी क्रैप फार्मिंग के बाद मैं इसके बाद पूछूंगी। इज दैट फाइन सर? यस यस। थोड़े कुछ बच गए थे तो मैं इसीलिए बोल रही थी। ओके ओके ओके। यस सर। Sir, we have a question from Sachin Chaudhary. Uh, he is studying from SKRAU बीकानेर राजस्थान। तो हिंदी में पूछा है कि सर यदि इसे एक छोटे रूप में प्रैक्टिकल करके देखना हो तो मजल्स खरीदने से लेकर उनको पूरा मतलब तैयार करने में कितना खर्च आता है और तैयार होने में कितना समय लगता है, और यदि इसे बेचने होगा तो मार्केट में कौन से मार्केट में बेचना पड़ेगा? क्रैप जब सेल आउट करना है तो हम एक तो फिश मार्केट में हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। क्रैप का ही चाहिए ना या पर्ल का चाहिए इन्फॉर्मेशन उनको? सर इट इज अबाउट क्रैब एज वेल एज पर्ल्स। ओके। क्रैप जब सेल आउट करना है तो एक तो फिश मार्केट में हम सेल आउट कर सकते हैं या होटल्स लाइन्स में दे सकते हैं। शुरुआत में क्रैप फार्मिंग का मिनी सेटअप करना है तो आप या वर्टिकल या बॉक्स क्रैप फार्मिंग में करके देख सकते हो। एक बार आपको अच्छी तरीके से लग लिया तो आप बड़ा वाला नेचुरल पाउंड में भी कर सकते हो। ओके। Yes, sir. Now we'll be moving to the next query. That is from सर लाइक बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ ट्रेनिंग का चार्जेस कितने रहते हैं, ओके। ट्रेनिंग कैसा होता है, कितने डेज का, लाइक थोड़ा सा पूछ रहे हैं सर आपके यस यस यस। ट्रेनिंग के दोनों बारे में। दोनों ट्रेनिंग का मैं बता देता हूँ। जो पर्ल फार्मिंग का ट्रेनिंग रहता है 2 डेज का रहता है। पर्ल फार्मिंग का सैटरडे और संडे ट्रेनिंग रहता है। सैटरडे 10 से 5 बजे तक थ्योरी हो जाती है। संडे को 10 से 1 बजे तक प्रैक्टिकल रहता है। उसमें सैटरडे सुबह और संडे सुबह का जो लंच रहता है वो मैं खुद से देता हूँ। सैटरडे नाइट का आपका जो भी स्टे पड़ता है नियरेस्ट लॉज है वहां रह सकते हो। 1000 रुपीज लेते हो, आपका खुद का रहता है। और ट्रेनिंग फीस पर्ल फार्मिंग की पर पर्सन 5000 रुपीज है। ओके। और क्रैप फार्मिंग का ट्रेनिंग मेरा एवरी मंडे रहता है। आपको जिस भी मंडे आना है ना उससे पहले कंफर्मेशन के लिए कॉल करके नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बाद में आने का उसका चार्जेस है। क्रैप फार्मिंग का पर पर्सन 4000 रुपीज ट्रेनिंग ट्रेनिंग की फीस है। ओके। मेरा नंबर है 9168588355। आपको जब भी ट्रेनिंग के लिए आना है तो पहले कंफर्मेशन के लिए कॉल करके नाम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बाद में आने का। Sir, they're also asking about the charges in clear for crab as well as the pearl. उसके लिए ऐसा कुछ सेपरेट है या फिर दोनों के लिए एक है? नहीं, दोनों को अलग अलग चार्ज है। Okay, sir. Sir, now we'll be moving forward for the questions from Praveen Kumar, one of our participants. ये पूछ रहे हैं कि does 2.5 lakhs expenses include the food for 18 months? And what is the total cost of 10 types of food? And how पर्ल to फार्मिंग standardize the size of pearl accepted in commercial market? पर्ल फार्मिंग Sir, का जो 1.5 साल में जो फूड का खर्चा आ जाता है वो 15,000 तक आ जाता है उसका। 3000 मसल्स के लिए। ओके सर। सर आपके वहाँ चार्ट्स है ना वो लाइक वॉल पर, हम्म। क्या प्लीज आप उनको बताकर एक्सप्लेन कर सकते हो हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए? शायद वो थोड़ा सा और क्लियर बन जाएगा। मतलब किसका चाहिए आपको? और लाइक उधर जो दिख रहा है दीवार पे। ओके ओके ओके। हाँ सर, लाइक उधर थोड़े थोड़े इमेजेस है ना, तो शायद वो पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा हेल्प बन जाएगा। मसल्स का है। मसल्स के अंदर के बॉडी पार्ट्स का है ये पूरा स्ट्रक्चर।
इस मेंटल के ऊपर हम बॉडी प्लांटेशन कर लेते हैं पर्ल्स रेडी होने के लिए। सामने डाई पैटर्न है, डाई के हम इसमें से मतलब जो भी रहता है वो डिजाइनर पर्ल बनने के लिए ऐसा रहता है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स है, सर्जरी किट है, स्ट्रक्चर है अलग अलग से। फिर बाद में 3 मंथ के बाद जब पर्ल रेडी होता है ऐसा रेड कलर का शेडिंग आ जाता है। 6 मंथ के बाद जो लस्टर रहता है ग्रीनिश रहता है और ब्लैक में फाइनल पर्ल का स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर बाद में पेंडेंट से पर्ल्स रेडी होने के बाद ऊपर न्यूक्लियस है, रॉ पर्ल्स ऐसे दिखते हैं आपके सामने जो है वो। फिर इधर का क्रैब का है, क्रैब के छोटे छोटे एग्स के उसके पेट के अंदर। फिर बाद में छोटे सीड्स है। फिर बाद में मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन और क्रैब लाइफ साइकिल है, बॉडी पार्ट्स क्रैब के। ओके, Thank you for that, sir. Sir, we'll now be moving for the next participant's query. That is from Tanuja. So, ओके। वो पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियस के टाइप्स एंड मोस्ट डिमांडेबल न्यूक्लियस, सर। न्यूक्लियस के टाइप दो रहते हैं, एक तो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो रहता है और दूसरा जो रहता है वो एमओपी रहता है। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा एमओपी रहता है। एमओपी सबसे ज्यादा मार्केट में चल जाता है। ओके सर। उसके बाद दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, तो ही इज गगन श्री। सो उनका क्वेरी है, व्हाट गवर्नमेंट स्कीम्स सपोर्ट क्रैब फार्मिंग एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर अ क्रैब टू रीच द मार्केट कैसे साइज? कैसे होता है कि पर्ल फार्मिंग और क्रैब फार्मिंग का भी सब्सिडी जो रहता है फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहां जाके हर एक डिस्ट्रिक्ट में फिशरी डिपार्टमेंट में रहता है, वहां जाके आप इंफॉर्मेशन निकालो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यस सर। सर काइंडली कुड यू स्विच योर कैमरा, मतलब फ्रंट कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? हाँ ओके। ओके यस सर। और दूसरा क्वेश्चन था, क्रैब को मार्केट साइज रीच होने के लिए कितना समय लगता है? 1 साल तक जाता है। जो फ्रेश वाटर मसल्स रहते हैं वो 500 से लेके 700 ग्राम्स तक हो जाते हैं और जो सॉल्टेड वाटर होते हैं 1 kg प्लस रहता है वो। Okay, sir. Sir, now we have the next query question from that is from Umakant Yadav. So ये पूछ रहे हैं कि what treatment should be administered if crabs are biting? मतलब क्रैब जब बाइट करेगा तब कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है, एंड शेल डिसीज आएगा देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं सर। नहीं, एक तो क्रैब जब बाइट करता है तो कोई मतलब हमें इंसान को जब क्रैब बाइट करता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब भी किसी क्रैब ने पकड़ लिया तो उसे सीधा पानी में डिप करने का, छोड़ देने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आपको जब भी पकड़ लेता है तभी खींच लिया है तो हाथ से ब्लड आ जाएगा बाहर। इसलिए जब कभी भी आपको क्रैब ने किसी पकड़ लिया तो उसको सीधा पानी में डिप करो, आपको तुरंत छोड़ देगा। खाली वो प्रेस कर देता है, प्रेस करता है, बाकी कुछ नहीं करता वो। ओके सर। सर ट्रीटमेंट फॉर द शेल डिजीज, शेल के ऊपर कुछ डिजीजेस आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट कैसा करते हैं? सेल के ऊपर जो डिसीज आते हैं तो एक तो हम उसको एंटीबायोटिक की टैबलेट्स वगैरह देते हैं, क्लीन अप कर देते हैं। बाकी कुछ इतना ज्यादा डिसीज नहीं। आपने केयरफुल किया तो कोई डिसीज नहीं आता, केयरफुल नहीं किया तो डिसीज आ जाते हैं उसके ऊपर ज्यादातर। मतलब पानी मेंटेन रखना, अमोनिया का क्रिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी में। अमोनिया बढ़ गया तो क्रैब हो या पर्ल हो या पानी में रहने वाला कौन सा भी जलचर जीव हो, मोर्टेलिटी हो जाता है। इसलिए पानी में अमोनिया ना बने, इसलिए हम केयरिंग कर लेते हैं उसकी। यस सर। सर और एक क्वेश्चन है उन्हीं से, क्यों क्रैब्स अपसाइड डाउन और क्रूक्ड जगह जैसे चलते हैं? व्हाई डू क्रैब्स मूव अपसाइड डाउन? क्रैब कैसे रहता? क्रैब कभी भी सीधा नहीं चल सकता, क्रैब वो टेढ़ा ही चल जाता है। क्यों चलता है कि एक तो कैसे होता है कि एक तो उसके टोटल्स 8 लेग रहते हैं। 8 लेग रहते हैं, उसमें से 6 लेग रहते हैं वो वॉकिंग लेग रहते हैं और एंड के जो 2 लेग रहते हैं वो स्विमिंग लेग रहते हैं।
इसलिए जब भी वो चलता है तो 8 पैर एक साथ चल जाते हैं तो उसके चलने के लिए दिक्कत है, इसलिए क्रॉस क्रॉस में क्रैब कभी भी चलता है, सीधा कभी नहीं चलता वो। सर इसके अलावा इज देयर एनी डिजीजेस इन क्रैब फार्मिंग? क्रैब में कोई डिसीज नहीं आता, खाली पैरामीटर्स मेंटेन रखना यही इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। और क्लाइमेट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर नहीं होना चाहिए ज्यादा, ज्यादा टेम्परेचर हो गया है तो क्रैब के ऊपर का जो कवच रहता है वो हार्ड रहता है, उसने टेम्परेचर ज्यादा सक कर लिया तो वो मोर्टेलिटी हो जाता है उसका। ओके सर। सर वी हैव अनदर क्वेरी फ्रॉम ऋषिराज। तो उनका हम्म। क्वेश्चन है, मिनिमम कॉस्ट फॉर स्मॉल यूनिट ऑफ क्रैप फार्मिंग। मिनिमम कॉस्ट पूछ रहे हैं सर, छोटा यूनिट में। हाँ, वर्टिकल पाइप का फार्मिंग में किया, वर्टिकल पाइप फार्मिंग में तो 10,000 तक रेडी हो जाएगा। बॉक्स में किया तो छोटा वाला 35 बॉक्सेस में तो कम से कम हमें वो उसका खर्चा 30-40 हजार तक जाएगा। और आपको कम करके देखना है तो क्या, एक बकेट लिया, बड़े वाले ड्रम्स, एक ड्रम एक क्रैब लिया, ऐसे 4-5 बकेट भी लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा उससे आपको। नेक्स्ट। यस सर, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेरी। पैरामीटर्स क्या आप बता सकते हो कि कौन से पैरामीटर्स रहते हैं? पीएच लेवल रहता है, टीडीएस लेवल रहता है, टेम्परेचर रहता है, अमोनिया रहता है। Okay, sir. There is another question from Anjali. So, हम्म। what are the quality index of mussels and where can we order good quality of mussels? एक Also, तो do you have any website for ordering and any training session on mussel cultivation? नहीं, सर मेरा ये जो, पूछ रहे हैं हाँ, कि क्वालिटी इंडेक्स ऑफ मसल्स क्या है एंड कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ ऑर्डर कर सकते हैं करके। सब कुछ आपको जो भी मसल्स के लिए जो भी स्ट्रक्चर, मसल्स हो या क्रैप फार्मिंग हो, आपको जो भी सीड्स चाहिए, सब कुछ जो न्यूक्लियस चाहिए, मसल, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल रह सकते हैं। आप मेरे नंबर पे कॉल करके वो भी आप मंगा सकते हैं, आपके इधर कुरियर से पहुंच जाएगा वो। ओके। ओके सर। सर देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम वर्तिका। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द इनिशियल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट पर्ल और क्रैब फार्मिंग, लाइक अ लैंड स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्या चाहिए जमीन के बाद हमको क्रैब और पर्ल फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए हमको लैंड के अलावा और क्या चीज चाहिए? एक तो टैंक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पर्ल फार्मिंग के लिए भी, क्रैप फार्मिंग के लिए भी, चाहे वो वर्टिकल में बनाओ या आप पर्ल फार्मिंग का सिंटेक्स टैंक में भी छोटा सेटअप बना सकते हो। फिर क्रैप का भी बनाना है, वो भी एक नेचुरल टैंक में भी बना सकते हो, या आप वर्टिकल या बॉक्स में भी बना सकते हो। आपके हिसाब से वो सेटअप स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। सर अभी एक क्वेश्चन है कॉमन वाला। जैसे हाँ। कि हम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं, इट माइट बी स्मॉल यूनिट और द लार्ज यूनिट, तो हमको प्रॉफिट कब तक आने लगेगा? पर्ल फार्मिंग का 1.5 साल के बाद आता है, क्रैप फार्मिंग का 1 ईयर के बाद आता है। सर चाहे नॉर्थ से हो या फिर साउथ से हो या फिर कोई जोन से भी रहे, देन हम्म। हाउ शुड वी सेल दी पर्ल्स और एल्स दी क्रैब्स? ये डाउट है सभी लोग। पोइल सेल आउट करना है तो हैदराबाद, जयपुर में आप सेल आउट कर सकते हो पोइल का। और आपको कोई बायर्स नहीं मिल गया तो मैं सेल आउट करके देता हूँ, लेकिन परसेंटेज लेता हूँ, आपको खुद से भी कर सकते हो। और दूसरा, क्रैप का भी क्या रहता है कि आपके इधर नियरेस्ट जो फिश मार्केट रहे या होटल लाइन्स रहेगी, उसके ऊपर आप क्रैप का सेल आउट कर सकते हो, या खुद का होटल डाल के भी उसका जो भी है वो चीज बना के आप सेल आउट कर सकते हो भी। यस सर। और एक क्वेश्चन है प्रवीण कुमार से। ये है कि हाउ मेनी साइकिल्स और राउंड्स ऑफ पर्ल्स हार्वेस्ट हैव यू टेकन सो फार? मतलब आपने इतने कितने बार किए हैं ये पर्ल्स हार्वेस्टिंग का, एंड 6 बार हाउ मेनी किया है। इयर्स ऑफ। ओके। आपने 6 साल किए हैं, आप हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको है इसमें, और आपने कुछ लॉस फेस किए हो क्या कभी? या शुरुआत में हुआ था ना, कैसा होता है, कौन सा भी बिजनेस स्टार्टअप किया तो समझ में आने के लिए फर्स्ट टाइम थोड़ा जाता है। एक बार समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आता उसका।
मुझे पर्ल फार्मिंग करते 8 से 10 साल हो गए पर्ल फार्मिंग करते समय मुझे। सर देयर इज अनदर क्वेश्चन, एक पर्ल कितने में बिकता है, और फिर लेकिन लार्ज अमाउंट कैसा, लाइक हाउ शुड वी गेट अ प्राइस फॉर दैट करके पूछ रहे हैं। ओके, एक जो पर्ल्स रहता है इंडियन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का जो पर्ल्स रहेगा वो मिनिमम 90 से लेके 100 रुपए तक सेल आउट हो जाता है। एमओपी रहता है तो 180 से लेके 200 तक हम उसका सेल आउट कर देते हैं। रॉ पर्ल्स। ओके। बहुत सारे लोग सेलिंग के ही डाउट है सर, सेलिंग लाइक के लिए कोई कहाँ। दिक्कत नहीं, सेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप खुद से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मेरे से भी जुड़ के पर्ल फार्मिंग का सेल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिपेंड पर आप जैसे बनाते हो उसके ऊपर रहता है वो सब कुछ। लेकिन प्रॉपरली नॉलेज चाहिए, गाइडेंस ले लो, ट्रेनिंग ले लो, सब कुछ A to Z सपोर्ट करूंगा आपको। ओके सर वी आर लेफ्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस मोर, तो ये है कि डू वी फेस एनी पैरासिटिक infections in crab and pearl farming and management practices that should be followed for parasitic infection control. पर्ल पर्ल फार्मिंग के लिए इन्फेक्शन एक तो क्या होता है, आप केयरिंग अच्छी तरीके से, मतलब इन्फेक्शन क्या, आप कहाँ से भी आ गए, पानी में हाथ डाल दिया या कुछ भी मिलावट हो गया तो उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं पर्ल के लिए। लेकिन क्रैब के लिए इतना कुछ डिसीज नहीं है ज्यादातर, क्योंकि क्रैब भी स्ट्रांग है, पर्ल भी स्ट्रांग है। लेकिन पर्ल फार्मिंग के जो मसल्स रहते हैं केयरिंग करते समय हैंड वॉश करना जरूरी रहता है, मतलब हम खुद से हाइजीन होना अच्छी तरीके से जरूरी होता है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन ना हो इसीलिए। ओके सर ये दोनों के लिए है, फिर क्रैब के लिए दोनों दोनों क्रैब के लिए कोई दिक्कत नहीं आती इतनी ज्यादा, वो आप केयरिंग कर सकते हैं नॉर्मली। यस सर, वी विल बी मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेरी ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो ये है संदीप यादव से, व्हाट इज द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रैब, which crab species are commonly used in aquaculture? एक्वाकल्चर में कॉमनली यूज किया जाता है, एक ब्लैक मड क्रैब रहता है फ्रेश वाटर का, और सॉल्टेड वाटर का साइला सेरेटा रहता है वो ग्रीन मड क्रैब रहता है वो। Okay, sir. The next question is, what is the ideal water salinity and temperature for crab culture? एक तो टेम्परेचर हमें वही सेम ही रहता है, 25 डिग्री से 32 डिग्री तक मेंटेन रखना पड़ता है पानी का। ओके और सैलिनिटी हमें 60 ppm से लेके 900 pp के अंदर ही TDS चाहिए उसका पानी का। Sir, there is another question from Sandeep Yadav itself. तो वो ये पूछ रहे हैं कि what do crabs mainly feed on in aquaculture systems? अगेन What do crabs mainly feed on aquaculture system? एक तो हम क्या कहते हैं, वेज भी देते हैं और नॉन वेज भी, दोनों भी देते हैं उसके लिए, क्रैब के लिए हम वे नॉन वेज में हम फिश डाल देते हो, फिश या चिकन हो वो डाल देते हैं उनके खाने के लिए। जितना नॉन वेज डालेंगे उतना ग्रोवेशन अच्छा हो जाता है उसका। Yes, sir. We have another question from Swati Sharma. अरे Can there be any value added product that one can have from crab? Any unique? फिर से एक बार बता दो। सर ये पूछ रहे हैं कि क्रैब से हम कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? ऐसे हाँ कुछ है, यस सिर्फ बहुत यस यस यूनिक है। यस, आप एक यस। तो क्रैब खाने के लिए भी सेल आउट कर सकते हो, क्रैब ऑयल भी बना सकते हो, या फ्रोजन क्रैब करके भी वो सेल आउट कर सकते हो। सॉफ्ट शेल भी उनका सेल आउट हो जाता है वो। क्रैब ऑयल पता है, मार्केट में क्रैब ऑयल मिलता है, वो क्रैब से हम क्रैब ऑयल भी निकाल सकते हो। ओके यस सर। सर ये और एक क्वेश्चन है फ्रॉम वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट, डज वाटर कंटामिनेशन विथ केमिकल और डिटर्जेंट affect the muscle farming? Does it lead to death of muscle? एक बार बोलो फिर से।
सर ये क्वेश्चन था कि जब वाटर कंटामिनेशन लाइक डज वाटर कंटामिनेशन विथ केमिकल और डिटर्जेंट affect mussel farming? Does it lead to the death of mussel? हम केमिकल उसमें कौन सा ज्यादातर यूज ही नहीं करते ना। पानी में क्या ये केमिकल यूज करते हैं उसके लिए, मोर्टेलिटी होने के लिए। पानी एक तो जब पर्ल फार्मिंग हो या क्रैप फार्मिंग हो, करने से पहले एक तो सबसे पहले पानी के पैरामीटर्स चेक करना पड़ेगा। जो पैरामीटर अच्छी तरीके से मैच होते हैं वही पानी हम पर्ल फार्मिंग और क्रैप फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। उसमें कुछ केमिकल का मिलावट नहीं रहता उसके अंदर। Okay, sir. Sir, we have another question. How market fluctuations affect the strategies and profitability of local farmers? शेल या क्रैब? Sir? Sir, पर्ल for फार्मिंग या crab. क्रैप फार्मिंग? Crab farming. क्रैप फार्मिंग क्या नॉर्मली सेल आउट हो जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं आती। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं उसका। लोकल मार्केट में भी सेल आउट, मैं आपको वही बता रहा हूँ, लोकल मार्केट में भी सेल आउट होता है और वो फिश मार्केट में भी सेल आउट हो जाता है और नॉर्मली होटल लाइन भी सेल आउट हो जाए। खाने की चीज है, आप सर्च करो थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ सेल आउट होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। यस सर। सर, अगर आपके पास कुछ वीडियोस होंगे तो क्या आप हमारे नंबर को सेंड कर सकते हो? क्या हम शेयर कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल इस वीडियो में ये मैंने मोबाइल चेंज किया है पोल क्रैप के, मैं बाद में आपको भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसकी। Okay, थैंक यू वीडियो स्ट्रक्चर। sorry to interrupt. Let me share some videos for the help of participants. ट्रेनिंग फार्मिंग, जिसको कि हिंदी में मोती की खेती कहते हैं, ये एक्चुअली है क्या? क्या होता है कि एक जो सीप जो रहते हैं, चाहे वो रिवर में रहे या समंदर में रहे, उसका एक दिन का पूरे चक्र में क्या होता है 2.5 से 3 लीटर पानी सक कर लेते हैं। अच्छा। जब वो पानी सक करते गलती से जब कंकड़ पत्थर छोटा सा पार्टिकल उस शरीर के अंदर चला गया तो उसको बाहर निकलने नहीं आए तो उसके ऊपर वो कोटिंग कर लेते, उससे वो नेचुरल पर्ल बन जाते हैं। हम क्या करते हैं कि उसके शरीर में हमें जो मोती चाहिए, चाहे वो गणेश जी हो, शिव जी हो, कौन सा भी हो, या हाफ राउंड हो, फुल राउंड हो, उस हिसाब से हम उसके शरीर के अंदर वो प्लांटेशन कर देते हैं और उसी हिसाब से वो 1.5 साल के बाद उसमें से हमें पर्ल रेडी मिल जाता है। और पर्ल का क्या होता है कि सबसे पहले वो जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन दवाई बनाने के लिए पर्ल की पाउडर का यूज किया जाता है। अच्छा। बाद में आयुर्वेदिक में किया जाता है, थर्ड में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है और लास्ट में जो होता है वो ऑर्नामेंट्स में आ जाता है। इसका वेस्टेज कुछ भी नहीं जाता। तो पर्ल फार्मिंग, जिसको कि हिंदी में मोती की खेती कहते हैं, क्रैब फार्मिंग का। हाँ। तो क्रैब कहाँ से लाने हैं और कितने क्रैब डालने चाहिए हमें? जो हमारे यहाँ अभी 1000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर बना है, इसमें कम से कम 150 से 200 केजी हम मेल फीमेल एडल्ट क्रैब इसके अंदर छोड़ देते हैं। 50% हम फीमेल छोड़ते हैं, 50% उसमें मेल छोड़ते हैं। इन दोनों का इक्वल करके इस टैंक में हमें छोड़ना जरूर रहता है। पहले मैं बोलता था 70-30% करना चाहिए, लेकिन 70% 30% करना जरूरी नहीं है। उनका मीटिंग का टाइम 2 आवर्स प्लस रहता है, इसलिए 50-50% ओके रहा तो ब्रीडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा। कितनी एज का क्रैब डालना चाहिए? फीमेल जो क्रैब रहती है वो 3 इयर्स तक जिंदा रहती है, मेल जो रहता है तो 2.5 साल तक जिंदा रहता है। 100 से लेके 200 के बीच में जो क्रैब रहते हैं एडल्ट, वही हम ब्रीडिंग के लिए इसके अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है। 200 के ऊपर के रहेंगे खाने के लिए यूज किया जाता है, होटल लाइन में जाता है। सेटअप हमने शुरू करना है क्रैब फार्मिंग का। हाँ। तो क्रैब कहाँ से लाने हैं और कितने क्रैब डालने चाहिए हमें? जो हमारे यहाँ अभी 1000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर बना है, इसमें कम से कम 150 से 200 केजी हम मेल फीमेल एडल्ट क्रैब इसके अंदर छोड़ देते हैं। 50% हम फीमेल छोड़ते हैं, 50% उसमें मेल छोड़ते हैं। इन दोनों का इक्वल करके इस टैंक में हमें छोड़ना जरूर रहता है। पहले मैं बोलता था 70-30% करना चाहिए, लेकिन 70% 30% करना जरूरी नहीं है। उनका मीटिंग का टाइम 2 आवर्स प्लस रहता है, इसलिए 50-50% ओके रहा तो ब्रीडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा। कितनी एज का क्रैब डालना चाहिए? फीमेल जो क्रैब रहती है वो 3 इयर्स तक जिंदा रहती है, मेल जो रहता है तो 2.5 साल तक जिंदा रहता है। 100 से लेके 200 के बीच में जो क्रैब रहते हैं एडल्ट, वही हम ब्रीडिंग के लिए इसके अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है। 200 के ऊपर के रहेंगे खाने के लिए यूज किया जाता है, होटल लाइन में जाता है। सेटअप हमने एक्सपीरियंस लेके क्रैब फार्मिंग का।
क्या कभी आपने सोचा है कि क्या घर से हम क्रैप फार्मिंग कर सकते हैं? जी हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे घर है और घर के बैक साइड में यहाँ पे क्रैप फार्मिंग हो रहा है। यहाँ पे होता क्या है कि समुंदर का खारा पानी, हम है अलीबाग में, मुंबई के पास में थोड़ा सा नीचे आता है ये, और यहाँ पे सीधा खारा पानी लाया गया है। खारे पानी में से जो सॉलिड पार्टिकल है उसको साइड में कर दिया है, बैक्टीरिया है उसको मार दिया है। वो कहाँ पे होता है? तो ये पीछे ये देखिए, ये 2 बैरल है और यहाँ पे ये फिल्टर वगैरह आरओ उन्होंने खुद से डेवलप किया है। जो बाद में जो पानी रहता है यहाँ से सीधा पाइप से जो है इसके अंदर जाता है। और होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कौन सा वाला खोला था आपने? ये वाला खोले रहिए। हाँ, ये देखिए इसमें क्या है कि ऊपर से जो है, ये देखिए इसमें ये क्रैब है और ऊपर से जो है पानी इसके अंदर गिरता रहता है। ये देखिए पानी अंदर गिर रहा है और ओवरफ्लो होता है तो फिर नीचे जाता है, यानी कि रीसर्कुलेशन इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक ही पानी को रीसर्कुलेट करते हैं, 15-20 दिन तक कर सकते हैं और इसमें क्रैब पाल सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो यार कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो ढेर सारा शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या घर से हम क्रैब फार्मिंग पर्ल फार्मिंग करने के लिए अगर एक छोटा किसान स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कितने शीप की जरूरत होगी और उसका क्या खर्चा आएगा, ये बताइए। देखिए सर, अगर किसान छोटे लेवल से भी शुरू करता है, जैसे मान लो उसने 1000 सीप से शुरू किया, अब जैसे 1000 सीप का खर्चा हम देखते हैं तो 45,000 आ जाता है। अगर टैंक बनाना भी बीच में लगा के चलिए तो 12 से 15,000 टैंक में लग जाएगा। 60,000 मान के चलिए आप। 60,000 में किसान को 13 महीने बाद डिजाइनर मोती का जब काम करेगा तो 2.25-2.5 लाख का मुनाफा हो जाएगा। पर्ल फार्मिंग करने के लिए अगर एक की खेती जिसमें पैदा होते हैं बेशकीमती मोती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस खेती को करने के लिए हमारे किसान भाई नहीं बल्कि काम करते छोटे छोटे जीव। सदियों पहले तक ये खेती सिर्फ समुद्र में होती थी, लेकिन एक किसान भाई ने कर दिखाया एक ऐसा कारनामा जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं मोती की खेती कैसे होती है और साथ ही जानेंगे असली और नकली मोती में फर्क क्या है। तो मोती बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के समुद्र और नदियों से इन शिपों को मंगाया जाता है, जिन्हें डाला जाता है स्प्री टैंक के अंदर, जिनमें इन्हें 8 से 10 दिन के लिए रखा जाता है ताकि इस पानी से जो है अच्छे से आपस में मिल सके। मैं आपको बता दूं, जो शिप होती है ना, वो पानी में रहने वाली मछली की तरह एक जीव होती है। इसके भी हाथ पैर होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पैर अपना बाहर निकाल रखा है और जैसे आप इसे हाथ लगाएंगे वैसे अपना पैर अंदर कर लेगी। अब इस प्री टैंक में रखने के बाद बारी आती है इनका ऑपरेशन करने की, जिसके लिए इन्हें एक रेत से भरी हुई ट्रे के अंदर जमाते हैं, जिसमें इनका जो मुंह है वो ऊपर की साइड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारी शिपों को लगाते जा रहे हैं इस बड़ी सी रेत भरी ट्रे के अंदर और इनका जो मुंह है वो बाहर की साइड निकला हुआ है। पानी से थोड़ा बाहर निकलते ही जैसे इनको हल्की सी हवा लगती है, इनका जो मुंह है वो आधा mm या फिर 1 mm तक खुलना शुरू हो जाता है। अब मोती बनाने के लिए इनमें न्यूक्लियस डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पैर में कोई सीख चुभ जाए और उसे हम बाहर ना निकाले तो उस पर चमड़ी चढ़ने लग जाती है, उसी प्रकार किसी भी शिप में अगर कोई पत्थर या फिर न्यूक्लियस डाला जाए और वो जो शिप है वो उसे खुद नहीं निकाल पाती तो वो मोती बना देती है। अब इसके मुंह को प्लगर की सहायता से 8 mm तक खोला गया। अब इसकी मेंटले में हल्का सा चीरा लगा के इसके अंदर न्यूक्लियस डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कौन से प्रकार का मोती बनेगा। अभी जो है यहाँ पे इंडियन न्यूक्लियस डाला जा रहा है, जो कि दोनों तरफ से मेंटले में डाला जाता है और जो कि 2 उगते हैं एक शिप के अंदर। तो अब गोल आकार के मोती बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शिप ली गई है। इसके मुंह को 8 mm तक खोला जाएगा प्लकर की सहायता से। अब ये जो गोल आकार का मोती होता है ना, ये मेंटले में नहीं बल्कि गोनाड में उगता है। और जो गोनाड है ना वो शिप के पैर के पीछे की तरफ होता है। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले जगह को सुन करा जाता है, फिर 8 mm तक चीरा लगा के उसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस डाला जाता है। न्यूक्लियस को अंदर अच्छे से डालने के बाद जगह को अच्छे से बंद करा जाता है, हल्का हल्का दबा दिया जाता है इसकी चमड़ी को और उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खुद ब खुद अपना मुंह बंद कर लेती है। और अब ऑपरेशन के बाद बारी आती है इनको एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन देने की, जिसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 2 लीटर पानी में थोड़ी सी दवाई डाली गई है जो कि एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन दोनों का ही काम करती है। अब इसमें एक एक करके सारी शिप को डाल दिया जाएगा जिन्हें ऑपरेट करा गया था। उसके बाद ये ऑक्सीजन पाइप लगा के इन्हें आध घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें 5 दिन तक इस ऑब्जर्वेशन टैंक में रखा जाता है, जो कि एक तरीके से पोस्ट टैंक होता है, जिसमें देखा जाता है कि जितनी भी शिप है वो सर्वाइव कर भी पा रही है या नहीं। और उसके बाद बारी आते हैं मेन टैंक में शिफ्ट करने की, जिसमें मोती बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ट्रे लगी हुई है, जिसमें आप ऊपर देखेंगे तो एक बोतल भी लगी हुई है, जिसमें डेट डाल के रखा जाता है कि कब सारी शिपों को डाला गया था और इन्हें कब निकालना है। मैं आपको बता दूं, शिप से मोती बनाने में ना 1 से 1.5 साल लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे चिट डाल के रखा जाता है। दुनिया की एक ऐसी अनोखी खेती जिस I request Ms. Chatisa to please continue with the queries if you have more queries.
Yes, sir. Thank you for that. Sir, we have a question from Shil. Only request you to turn on your mic. Students cannot fly in the sky. Dog cannot run fast. Teacher cannot read. Sir, हाँ यस तो हमको शिल्पा से ये क्वेश्चन आया है कि इन पर्ल फार्मिंग ड्यूरिंग सर्जरी और ऑपरेशन क्या इनपुट किया जाता है जिससे फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर होते हैं? और उसके अंदर हम न्यूक्लियस प्लांटेशन करते हैं मैडम। कितनी बार हमें ट्रेनिंग सेशन में बता दे एमओपी या कैल्शियम कार्बोनेट का जो न्यूक्लियस रहता है वो उसके शरीर के अंदर हम प्लांटेशन करते हैं। ओके सर, देर आर लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो ये है कि प्रियंका पूछ रहे हैं कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एंड कहाँ हैं? व्हाट इज द फूड फॉर क्रैब इन ओशंस और सीज? अभी ये स्मॉल यूनिट में नहीं पूछ रहे हैं सर, ये दे आर नॉर्मली आस्किंग इन ओशन और सीज में कौन सा पर्ल फार्मिंग का एक क्रैब फार्मिंग का क्रैब्स लिए जाते हैं? क्रैब का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मैं खुद से क्रैब महाराष्ट्र फार्मिंग में का व्हाट? हाँ क्रैब फार्मिंग का वही बता रहा हूँ। क्रैब फार्मिंग का जो रहता है वो महाराष्ट्र में मैं खुद से ही लेता हूँ, अकेला ही हूँ। और फ्रेश सॉल्टेड वाटर का जो रहता है ओशंस का और रिसर्च सेंटर है गवर्नमेंट का तमिलनाडु में रहता है, राजीव गांधी रिसर्च सेंटर के वो वहाँ सॉल्टेड वाटर का ओनली रहता है। जिसके पास सॉल्टेड वाटर रहता है वो वहां ले सकता है, और फ्रेश वाटर का चाहिए तो मेरे पास देखते हैं। लेकिन ये बता सकते हो फ्रेश वाटर और क्रैप वाटर के दोनों ट्रेनिंग में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। खाली कैसे रहता है, फ्रेश वाटर का करना है तो आपको फ्रेश वाटर चाहिए और फ्रेश वाटर का क्रैप का ब्रीड चाहिए। सॉल्टेड वाटर का करना है तो सॉल्टेड वाटर चाहिए आपके पास और सॉल्टेड वाटर की ब्रीड चाहिए। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट। Yes sir, just a minute, I'm searching for the next query. Sir, one last question is how to identify whether the pearl has been formed, and बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बायबैक ऑप्शंस फॉर बोथ पर्ल एंड क्रैब, ये 2 चीज बता दीजिए सर। ऑयल फार्मिंग में क्या रहता है कि जयपुर हैदराबाद में इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां आप सेल आउट कर सकते हो। कोई बायर्स नहीं मिल गया तो मैं सेल आउट करके देता हूँ, लेकिन परसेंटेज लेता हूँ। आप खुद से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ओके, पर्ल में। और क्रैब में कैसा रहता है, जहाँ फिश मार्केट रहता है या होटल्स रहता है वहां आप सेल आउट कर सकते हो खुद से, ओके। Yes sir, thank you for that sir. I Okay. request Mr. Rohit to kindly conclude with the vote of thanks. Thank you, Chitrisha. Now I would like to request Mr. Ajay Kasana, sir, Chief Secretary of Agri Sarthi, to share his words on today's session. Okay. Okay, thank you, Rohit. So, Jai Hind, thank you so much, Engineer Mayur Jagdale sir, for such an Thank you. in-depth and detailed session जो आपने हमारे participants को ऑन फील्ड जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, लाइव आपने जो शीप दिखाई है, पर्ल्स दिखाए Okay. हैं, जो क्रैब्स का सेटअप दिखाया है, दैट वाज रियली वंडरफुल एंड आई होप जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. सो वी आर Okay. रियली वेरी थैंकफुल टू यू एंड we look forward to have such more session with such an in-depth and practical knowledge in pearl and crab farming. Thank you so much, Okay. and thanks to all the participants Welcome. to attend the session very patiently. Over to Mr. Rohit. Thank you so much. Yes, welcome. Thank you, sir. It's my On pleasure. behalf of Agri Sarthi team, I would like to express my deep respect and gratitude to Engineer Mayur Jagdale sir for your valuable thoughts on mussels, types of mussels, need of pre-tank and the post-tank, structure of main Okay. tank, and also the crop farming, types of crops, crop seeds, along with the life cycles of
crafts and the muscles, which are truly inspired all the participants. We are deeply thankful for your time, knowledge, and the practical things which have been shared with us today, sir. Sir, once again, thank you, sir, for your highly informative and the motivating session. Okay. I would like to It's take my this pleasure. opportunity to thank you, sir. Thank you so much, sir. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to Dr. O.P. Chaudhary, sir, President of Agri Sarathi, for continuous encouragement and valuable guidance and the leadership. My sincere thanks also to our organizing director, Mr. Ajay Kasana, sir, Chief Secretary of Agri Sarathi, for his support, planning, and guidance, which ensured the smooth and successful conduct of today's program. I Okay. take this opportunity to thank all the participants for their enthusiastic participation, active engagement, and thoughtful interactions, which truly made the sessions lively and meaningful and successful. I also place on record of my appreciation to entire AgriSarthi team for their dedicated efforts in organizing this 30-day National Agricultural Training Program and for consistently providing a valuable platform for learning, capacity building, and professional development. Before we conclude, I kindly request all the participants to ensure that the attendance form which has been shared in the chat box must be filled on compulsory basis. Please note that submission of the form is mandatory and the link will be remained active only for 30 minutes. Once again, thank you all for the valuable time and participation. We look forward for your continued association and active participation in forthcoming sessions of Agri Sarathi Kranti 2026. Wishing you a all pleasant and productive day ahead. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. Okay.